સૌને નમસ્કાર. મને ગમતું પુસ્તક યુવા વાર્તાલાપમાં આપ સૌનું હૃદયથી સ્વાગત છે. આજના વક્તા પ્રજ્ઞાબેન ગુપ્તાનું આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી સ્વાગત કરીએ. પ્રજ્ઞાબેનનો પરિચય માનસીબેન આપશે, પણ પ્રજ્ઞાબેન વિશે હું બે વાતો કરવા માંગીશ. પ્રજ્ઞાબેન ગુપ્તા છેલ્લા માત્ર 1-1.5 વર્ષથી જ નવસારીમાં રહે છે. એઓ આમ તો રાજસ્થાનના છે, અહીં જોબ કરે છે. તેઓ હિન્દી ભાષી છે, એટલે આજે વાર્તાલાપ હિન્દીમાં આપશે. પ્રજ્ઞાબેન પુસ્તક પ્રેમી છે. આપણા પુસ્તકાલયના તેઓ વાચક સભ્ય છે. નિયમિત અહીંથી પુસ્તકો ઇસ્યુ કરી જાય છે વાંચવા માટે, અને એ રીતે એઓ આ લાઇબ્રેરી સાથે જોડાયા છે. અને આપણા યુવા વાર્તાલાપમાં અને બીજા વાર્તાલાપ સાંભળવા માટે પણ તેઓ નિયમિત આવતા હોય છે શ્રોતા તરીકે, અને આજે એઓ વક્તા તરીકે પ્રાપ્ત થયા છે. એનો આપણને સૌને ખૂબ જ આનંદ છે, ખૂબ જ ગૌરવ છે. એક બીજી ખાસ વાત કરવાની કે આપણે મોટે ભાગે એવું માનીએ, આપણે જરાક થોડીક વાતો કરીએ. આપણે ત્યાં કેટલી ઋતુઓ હોય? આપણે શું માનીએ, કેટલી ઋતુ હોય? મુખ્ય ઋતુ કેટલી આપણે ત્યાં? 3: શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું. અમુક દેશોમાં એક જ ઋતુ હોય, આખું વર્ષ એક જ ઋતુ ચાલે. અમુકમાં 2 ઋતુ હોય, અમુકમાં 3 ઋતુ. પણ મિત્રો, આપણો ભારત દેશ એટલો બધો સમૃદ્ધ છે ઋતુઓની દ્રષ્ટિએ પણ, કે અહીં 3 નહીં પણ 6 ઋતુઓ છે. જો તમને ખ્યાલ હશે તો એ 6 ઋતુ છે: વસંત, ગ્રીષ્મ, વર્ષા, શરદ, હેમંત અને શિશિર. બરાબર છે ને? તો આ 6 ઋતુઓવાળો આપણો આ દેશ છે. અને અત્યારે કઈ ઋતુ ચાલે છે આમાંની? વસંત ઋતુ. બરાબર. તો વસંત ઋતુનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે, અને આવતીકાલે વસંત પંચમી છે. બરાબર ને? તો વસંત પંચમી એટલે માતા સરસ્વતીનો પ્રાગટ્ય દિવસ, માતા સરસ્વતીની આરાધનાનો અને પૂજાનો દિવસ છે. તો ખૂબ જ સુંદર દિવસે આપણે અહીં ભેગા થયા છે. તો આવી એક વાસંતી સાંજના દિવસે આપ સૌનું દિલથી સ્વાગત છે. અને હવે હું માનસીબેનને વિનંતી કરીશ કે તેઓ કાર્યક્રમ આગળ ધપાવે. આવો માનસીબેન. આભાર દીપકભાઈ. પ્રજ્ઞાબેન, આપનું લાઇબ્રેરી તરફથી ખૂબ ખૂબ સ્વાગત. પ્રજ્ઞાબેન ગુપ્તા વાણિજ્ય વિદ્યા શાખામાં સ્નાતક થયા છે. હાલમાં તેઓ દેસાઈ ફાઉન્ડેશન નામની NGOમાં પ્રોગ્રામ મેનેજર તરીકે કાર્યરત છે. એમને વાંચન, પ્રવાસ અને સંગીતમાં વિશેષ રુચિ છે. આજે આપની સમક્ષ જે પુસ્તક લઈને આવ્યા છે એનું નામ છે હાઉ ટુ એન્જોય યોર લાઈફ એન્ડ યોર જોબ. પુસ્તક પર્સનલ અને પ્રોફેશનલ લાઈફમાં શાંતિ અને સંતોષ પ્રાપ્ત કરવાના અસરદારક ઉપાયો પર પ્રકાશ પાડે છે. ટાઈમ મેનેજમેન્ટ, અન્યોની સાથે સારા સંબંધ કેવી રીતે કેળવી શકાય, અને નાની નાની વાતોમાંથી જીવનમાં ખુશી કેવી રીતે મેળવી શકાય જેવા મહત્ત્વની બાબતો પર સિદ્ધાંતો શીખવાડે છે. પ્રજ્ઞાબેન, આપનું ફરીથી ખૂબ ખૂબ સ્વાગત. આપના સ્વાગત માટે હું હર્ષાબેન ઘોઘારીને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આપ આવો અને આભારપત્ર અને ભેટ પુસ્તિકા લાઇબ્રેરી તરફથી આપો. હર્ષાબેન, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે જેમ આપણે દર મહિનાના ખાસ કરીને પહેલા શનિવારે એક વસ્તુ રાખીએ કે ગમતાનો કરીએ ગુલાલ અંતર્ગત માહિતી સમીક્ષા, તો ગયું આખું વર્ષ આપણે એવી પ્રવૃત્તિ કરતા કે કોઈક મહત્ત્વનો દિવસ હોય તેને યાદ કરતા. જેમ દીપકભાઈ યાદ કર્યું કે વસંત પંચમી છે કાલે, તો એની વાત કરતા. પરંતુ ગયા સમયથી, ગયા મહિનાથી અમે કંઈક નવું વિચાર્યું છે કે હવે કંઈક દિવસને યાદ કરવા કરતાં કોઈ વ્યક્તિને યાદ કરીએ. તો આ મહિનામાં જન્મદિવસ કોનો છે? કોઈને યાદ છે? ફેબ્રુઆરી મહિનામાં જન્મદિવસ કોનો છે? કયા મહાન વ્યક્તિનો છે? છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ. બીજા કોઈ?
આપણા ગુજરાતના કે જે દિલ્હી સુધી ગયા છે, મોરારજીભાઈ દેસાઈ, એમનો જન્મદિવસ 29 ફેબ્રુઆરી, કે જે 4 વર્ષે એકવાર આવે લીપ યરમાં, અને ત્યારે સરસ રીતે ઉજવાય. પણ આપણે એમને યાદ કરીશું, ભલે આ વર્ષમાં 29 દિવસ નથી. એમનો જન્મ 1896ના રોજ વલસાડ જિલ્લાના ભદેલી ગામે થયો હતો, અને એમનો કાર્યકાળ, વડાપ્રધાન તરીકેનો કાર્યકાળ 1977થી 1979 સુધી રહ્યો હતો, અને એમનું નિધન 10 એપ્રિલ 1995ના રોજ થયું હતું. એમની થોડીક સેવા વિશે હું તમને વાત કરું તો તેઓ ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, કે જે મહાત્મા ગાંધી દ્વારા સ્થાપિત થઈ હતી, તેમાં કુલપતિ પણ રહી ચૂક્યા હતા, અને એમના કાર્યકાળ દરમિયાન તેઓ અચૂકથી એમની વિઝિટ લેતા, અને એવું કહેવાય કે ઓક્ટોબર મહિનામાં એઓ સંપૂર્ણ ત્યાં ડેડિકેટલી રહેતા. તેઓએ આત્મકથા ઇન માય વ્યૂ, કે જેનું ગુજરાતી અનુવાદ મારું જીવન વૃત્તાંત, એ લખ્યું છે. આ ઉપરાંત પોલીસ પ્રજાનો મિત્ર બની રહે, કરવેરા શા માટે, લોકશાહી સમાજવાદ, સડા વિનાનો વહીવટ જેવા પુસ્તકો લખ્યા છે. આ ઉપરાંત 1975માં તેમણે ગુજરાતમાં વિધાનસભાના વિસર્જન અને નવી ચૂંટણીઓની માંગ સાથે નવી દિલ્હીમાં 6 એપ્રિલે અનશન કર્યું હતું, જે 13 એપ્રિલ વડાપ્રધાન શ્રી એ ટાઈમના ઇન્દિરા ગાંધી દ્વારા ચોમાસા પહેલાં ચૂંટણી યોજવાની ખાતરી આપ્યા બાદ પૂર્ણ થયું હતું. તો આ થોડી વાત આપણે એમને વિશે કરીને એમને સ્મરણાંજલિ આપીએ. આપનો વધારે સમય નથી લેતી, જેના માટે આપણે ભેગા થયા છે. એમને હવે હું માઇક આપું છું. પ્રજ્ઞાબેન, આપ આવો અને પુસ્તક વિશે ચર્ચા કરો. કેમ છો બધા? મજામાં? તો મારું નામ પ્રજ્ઞા છે, ઓર હું દેસાઈ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટમાં પ્રોગ્રામ મેનેજર તરીકે કામ કરું છું. મને ગુજરાતી થોડું આવડે છે, ઓર હું હજી શીખું છું. મને ખબર નથી कि હું કેવી બોલું છું. आई होप मैंने सही गुजराती बोली होगी, अभी जो भी बोली होगी सही है. अरे वाह, थैंक यू. तो जो किताब है वो काफ़ी रंगीन किताब है, हाउ टू एन्जॉय योर लाइफ एंड योर जॉब. और उसके लिए हम ऐसे थोड़े बैठे नहीं रह सकते, हम सबको खड़ा होना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं कुछ सवाल पूछूंगी, और अगर आप उससे मतलब अगर आप एग्री करते हो तो आप बैठ जाइएगा, अगर आप नहीं करते तो आप खड़े रहिएगा. ठीक है? और हर एक सवाल के बाद प्लीज़ देखना कि आसपास कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग खड़े हैं. ठीक है? तो किसको सेब खाना पसंद है? एप्पल किसको पसंद है? जो पसंद करते हैं वो बैठ सकते हैं. ओके, चलिए. काफ़ी लोग हैं जिनको हेल्दी रहना पसंद है. वापस से खड़े हो जाइए एक बार. अगर किसी को खड़े और बैठने में दिक्कत है तो वो लोग बैठे भी रह सकते हैं, हैंड रेस के साथ भी हम लोग वो कर सकते हैं. ठीक है? किसको क्रिकेट पसंद है? क्रिकेट पसंद है, खेलना देखना? वाह, ठीक है. तो देख रहे हैं ना आप लोग कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग बैठे हैं. ठीक है, खड़े हो जाइए वापस. किसको गाना गाना पसंद है? गाना पसंद है? अच्छा. ठीक है, बहुत बढ़िया. चलिए वापस खड़े हो जाइए. किसको पसंद है कि उनको सब पसंद करें? ओके, नाइस. ओके, तो काफ़ी सारे लोगों को पसंद है, किसी लोगों को नहीं पसंद है. चलेगा, खड़े हो जाइए. कौन चाहता है कि उनकी इज्जत सब करें? बैठ सकते हैं. कि उनकी इज्जत हो वो जहाँ रहते हैं.
नहीं पसंद है आप लोगों को कि आपकी इज्जत हो? गुड गुड गुड, ठीक है। वापस से एक बार खड़े हो जाइए। किनको पसंद है कि कोई उनकी कमियां निकाले? ठीक है, ओके, खड़े हो जाइए। सॉरी, आपको बहुत एक्सरसाइज करा दी आज के लिए। किसको पसंद है कोई उनसे गलत तरीके से बात करे? गलत तरीके से रूड बिहेव करे या अटैक करने लगे आप पे? नहीं, अटैक मतलब शब्दों का अटैक ना, कि लड़ने ही आ जाए ऐसा। ठीक है, बैठ जाइए। चलिए, थैंक यू सो मच। ये आखिरी क्वेश्चन था। कुछ शेयर करना चाहेंगे आप लोग? जब आप ऑब्जर्व कर रहे थे, क्या कोई ऑब्जर्वेशन रही आपकी? जैसे कुछ क्वेश्चन थे कि कौन चाहता है कि सब उनको पसंद करे, तो कुछ लोग खड़े थे। मैं जानना चाहूंगी कि उनकी क्या सोच है। ओके, नाइस। कोई और शेयर करना चाहेगा? आई थिंक आप भी खड़े थे, राइट? ठीक है, सही कहा आप लोगों ने। ज़रूरी नहीं है सब हमें पसंद ही करे, पर मेरा सवाल था कि आपको पसंद है जब लोग आपको पसंद करते हैं? बिल्कुल, मैटर ऑफ हार्ट, यस। गुड, उसके बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे। आप? सेम थॉट है, मतलब आप लोग बैठते लिटरली, अगर आप सही से क्वेश्चन समझते तो, राइट? यस। कोई और है जो डिसएग्री करता है इस चीज़ से? बोल सकते हो, मतलब भी हमको सुनने ज़रूरी है ना, तभी हमें पता चलेगा बुक में क्या लिखा है और कितना रिलेटेबल है वो, आपके लिए कितना हेल्पफुल है वो। ठीक है। दूसरा था कि किसको पसंद है कि कोई उनकी खामियां निकाले? तो भी आई थिंक लोग बैठ गए थे, बहुत से लोग बैठे थे उसमें। तो मैं जानना चाहूँगी, यहाँ से भी जानना चाहूँगी कि क्या है उसका रीज़न क्या है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत अच्छा शब्द यूज़ किया है आपने। सबको पता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किसको कहते हैं? आप बताना चाहोगे? जो भी आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई एक्सपर्ट नहीं बनना है। हम्म, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। ठीक है। तो समझ में आया कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किसको कहते हैं? जो आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसको हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बोलते हैं। ठीक है। कुछ और कोई लोग शेयर करना चाहेगा? बिल्कुल
ओके, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया कि वो सॉल्यूशंस के साथ कुछ आ रहा है। बहुत सी बार होता है, बहुत सी बार नहीं भी होता वो सॉल्यूशन सबके पास, बट दैट्स अ नाइस पॉइंट। ओके, तो ये एक्सरसाइज क्यों की थी हम, ओवरऑल जब जाएंगे इन डेप्थ तो शायद आपको और रिलेटेबल होगा। कभी आप लोगों को ऐसा फील हुआ है कि यार दिन चालू हुआ है और मन कर रहा है कि यार वीकेंड होता, आज मन ही नहीं है काम करने का? किसको हुआ है, हैंड रेस करें। दिन बिताने का मन ही नहीं है आज, चलो बहुत से लोग थे, ठीक है। या फिर किसी गैदरिंग में जाना है, किसी से मिलना है तो आपका मन नहीं है, कुछ लोगों से मिलने का मन ही नहीं है। ओके, आधा हाथ खड़ा है, कभी कभी मे बी, हाँ नाइस, ठीक है। तो ये जो किताब है हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब, उसमें उन्होंने काफ़ी क्लियरली बोला है कि जो सिचुएशन है वो हम कैसे लेते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम खुश हैं या नहीं हैं, है ना। तो उन्होंने कहा है कि अमीर भी हो, गरीब भी हो, या स्ट्रगल कर रहा हो या सक्सेसफुल कर रहा हो, उसके मोमेंट लाइफ में कभी ना कभी ऐसा होता है कि आपको नहीं मज़ा आ रहा होता। चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप सक्सेसफुल हो, चाहे आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको लाइफ में मज़े नहीं आ रहे होते हैं। और उसका बहुत बड़ा कारण है कि शायद जिस चीज़ को भी आप कर रहे हो वहाँ पे या तो आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, या लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, या आप रिस्पेक्टेड फील नहीं कर रहे हो, या फिर आप खुश नहीं हो, है ना। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो फ्रस्ट्रेटेड और स्ट्रेस्ड, एंजाइटी, वो इस वजह से ही लेते हैं, ठीक है, जब उनको ये चीज़ें नहीं मिल रही होती, जब जहाँ काम कर रहे होते हैं, जहाँ लोगों से मिल रहे होते हैं। तो ये जो बुक है मैंने उसके लिए थोड़े नोट्स बनाए हैं जिसमें मैं बीच बीच में देखती रहूँगी, है ना, ताकि आप लोगों को सही चीज़ें दूँ और हम समझेंगे कि कैसे वो चीज़ें जो हैं, जो परेशान करती है, जो ज़्यादातर लोगों को स्ट्रेस देती है, एंजाइटी देती है, उसको हम डेल कार्नेगी ने ऐसा क्या बताया है जो उससे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सुन रहे हैं आप सब? हैंड रेस हो सकते हैं सबके, दोनों हाथ खड़े हो सकते हैं, चलिए ठीक है, बढ़िया। तो सबसे पहला जो पार्ट है उनका, तो ये जो बुक है ये मिक्सचर है, हाउ टू विन योर फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल और हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, उसका फ्यूजन है एक तरीके से ये, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहले 3 चैप्टर है उनको मैंने कंसोलिडेट करके नाम दिया है द डीपेस्ट डिज़ायर ऑफ ह्यूमन। तो क्या है डीपेस्ट डिज़ायर, जो गहरे मन का जो आपका ख्वाहिश है वो क्या है, कोई बताना चाहेगा? पीस। और समझ में आया सवाल? सवाल समझ में आया आपको? ठीक है, तो क्या डिज़ायर है? टू बी लव, टू बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। तो ये स्टोरी से बताती हूँ मैं कि एक 1800 की बात है कि एक इंसान था जो गरीब घर से था और वो बहुत हैंडसम इंसान भी नहीं था या बहुत इंटेलिजेंट इंसान भी नहीं था, पर उसने एक ऐसी चीज़ को मास्टर कर लिया था कि वो वर्ल्ड का सबसे बिलवड, सबसे लोकप्रिय लीडर बन गया था। और उस शख्स का नाम है अब्राहम लिंकन, जो कि प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट के, 16th प्रेसिडेंट थे, है ना। और वो ये इसलिए कर पाए क्योंकि वो समझ पाए कि लोगों की डीपेस्ट डिज़ायर क्या है। और उन्होंने कहा है कि जो लोगों की डीपेस्ट डिज़ायर है वो है कि वो चाहते हैं कि वो महत्वपूर्ण हो अपनी लाइफ में, है ना। द फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, नहीं फीलिंग नहीं, उन्होंने कहा डिज़ायर ऑफ इम्पोर्टेंस, कि हम सब में वो डिज़ायर है कि हम महत्वपूर्ण होना चाहते हैं। और उसका क्या प्रमाण है? आज जो सिविलाइजेशन है, आज जो ग्रोथ है हमारी, कहीं की भी आप देख लोगे, वो कहीं ना कहीं इसी कारण से हो रही है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो सबसे इंटेलिजेंट बीइंग है इस प्लैनेट पे, है ना, बिकॉज वो ही चीज़ जो है वो हमें इंसान से अलग बनाती है। तो किसी को भी अगर हमें डील करना है, किसी को भी अगर हम चाहते हैं किसी भी सराउंडिंग्स में इम्पॉर्टेंट होना, तो वो चीज़ हमें पहले देनी पड़ेगी,
तो उनका ये कहना है कि अगर हम किसी और को वैल्यू देते हैं, किसी को महत्व देते हैं, तो वो इंसान आपको महत्व देता है और वो आपको पसंद करने लगता है ना। तो बहुत से लोग थे जो चाहते थे कि यार हम भी लाइक्ड हो, हमें भी लोग पसंद करें। तो हमारी ज़्यादातर दौड़ किस तरफ होती है कि हम सबसे इंटरेस्टिंग पर्सन हो, हम लोगों को लगे कि हम हीरो हैं हमारी लाइफ के, हम हीरोइन हैं हमारी लाइफ के, राइट। ऐसा ही होता है कि हम किसी से भी मिलते हैं तो हम अपने बारे में बहुत बात करते हैं। और ये साइकोलॉजिकली टेस्ट लिया था कि अगर हम टेलीफोन रिकॉर्ड्स करें और पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ शब्द है वो मैं है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने वो किया, तो हम खुद के बारे में बहुत बात करते हैं और खुद के बारे में बताना बहुत पसंद करते हैं। हम इंटरेस्टिंग होने की कोशिश करते हैं और हम भूल जाते हैं इंटरेस्टेड होना, किसी और की बात सुनना, ठीक है। तो मैं एक सिनेरियो देती हूँ। एक पार्टी में आप लोग गए हो और 2 लोगों के साथ गए हो और उस पार्टी में एक इंसान जो है वो सिर्फ अपने बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। और दूसरा इंसान है वो बहुत अच्छे से उसकी बातें सुन रहा है, उससे सवाल पूछ रहा है। आपको वो कौन सा इंसान पसंद आएगा? तो हम ऐसा करते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोगों को बोलना कम पसंद है, तो हम पोल करेंगे। जो बहुत बोल रहा है उस शख्स का नाम देते हैं हम ए, जो सुन रहा है अच्छे से उसका शख्स का नाम देते हैं हम बी। तो कितने लोग ए को पसंद करेंगे? हैंड रेज। ठीक है। कितने लोग बी को पसंद करेंगे? सब, ठीक है। तो जो लोग अच्छे से सुनते हैं ना, हमें वो लोग पसंद आते हैं। तो क्या हम सुनते हैं अच्छे से किसी को? तो ये एक सवाल है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये भी नहीं पता कि उन लोगों की बात क्या है, बट हम जो है, ऐसा भी बोला जाता है कि जो अच्छे से सुनते हैं लोग उनको ज़्यादा ट्रस्ट करके चीज़ें बताते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, उनको सपोर्ट भी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो लेसन है हमारा चैप्टर का, कि अगर आपको किसी को, आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, तो आपको उनको इम्पोर्टेंस देनी होगी और हमको वहाँ पे खुद के बारे में बता के इम्पोर्टेंस नहीं देनी, बट उनके बारे में सुन के इम्पोर्टेंस देनी है। और उन्हें एक स्टोरी बताई है उसके साथ कि वो एक पार्टी में गए थे और वहाँ के ओनर जो थी वो थोड़ी सी पिकी होता है ना, कि थोड़े मूडी होते हैं, उनके मूड ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई लोग पसंद आते हैं कोई लोग नहीं आते हैं, ऐसे वाले। तो डेल कार्नेगी उनके साथ बैठे हुए थे टेबल पे और उनका कोई मोटिव नहीं था कि वो उस औरत को इम्प्रेस करे, बट वो जेन्युइनली बस उसकी लाइफ में थोड़ा इंटरेस्टेड हुए, उससे सुनी, पूरी पार्टी उसने बात की और नेक्स्ट डे उसने बोला मुझे जो सबसे अच्छा इंसान लगा वो है डेल कार्नेगी, है ना, क्योंकि उसको महत्वता फील हुई। तो जहाँ पे आप खुद भी सोचो, जहाँ पे हम जाते हैं, जो लोग हमें पसंद आते हैं वो क्योंकि हमें इम्पोर्टेंस देते हैं, जो हम चाहते हैं, वो हमारी बात सुनते हैं, हमारी बात समझते हैं और इसीलिए हमें वहाँ जाना, वहाँ काम करना या उन लोगों से मिलना पसंद है, राइट। डू वी ऑल एग्री? सब पेज पे हैं? ओके। तो 3 चीज़ें हमें फॉलो करनी है जब भी हम किसी से मिले। एक तो जेन्युइनली इंटरेस्ट लें। बहुत सी बार ना हम मतलबी हो जाते हैं, जैसे उन्होंने बोला कि समटाइम्स कुछ सुपरफिशियल लेवल पे लोग आ जाते हैं क्योंकि उनका कोई मोटिव होता है ना, वो मोटिव के साथ वो करते हैं। पर कुछ लोग जो होते हैं वो जेन्युइनली इंटरेस्ट लेते हैं। वो सबके साथ ऐसे होंगे, भले ही आप प्रेसिडेंट हो, भले ही आप क्लर्क हो, आपकी लाइफ में वो इंटरेस्टेड लेंगे, है ना। तो बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड। हमेशा स्माइल करो। तो उन्होंने कहा है कि स्माइल एक ऐसी कर्व है जो चीज़ों को सीधा कर देता है ना, तो लोगों को अप्रोचेबल बनाता है। तो ऑलवेज स्माइल। आप किसी भी सेटिंग में हो, आप स्माइल करो, तो लोगों को एक कनेक्शन ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। जैसे वो आए, बहुत से लोग आए और हम लोगों ने देख के स्माइल किया, राइट, तो एक आइस ब्रेक हो गया और हम लोग थोड़े और पहले से क्लोज हो गए, है ना। और इंसान को जो सबसे अच्छा शब्द लगता है वो है उसका नाम। तो नाम जो है वो डोपामिन करके एक ऐसा हार्मोन क्रिएट करता है जो हमारे को खुशी देता है। तो हमेशा नाम याद रखें, नाम ना भूलें, ठीक है। सो स्माइल पे एक स्टोरी है कि एक
क्लर्क था जो काम करता था, बहुत रूड, उसका चेहरा जो है वो हमेशा ऐसे ही बना रहता। वो इसलिए भी था क्योंकि लोग उसको वैल्यू नहीं देते थे, लोग उससे ढंग से बात नहीं करते थे, तो वो सबसे ऐसे ना दूर रहता था और फ्रस्ट्रेटेड रहता था। तो डेल कार्नेगी से उसने बात की, उसने बोला बस तुम हंस दिया करो, किसी को भी देखो करो ना, हंस दिया करो। उसने सबको हंसना चालू कर दिया। लोग सोच रहे पहले क्या पागल हो गया ये तो है ना, बट उसके बाद एक हफ्ते बाद लोग खुद ही रीजंस के साथ आ रहे कि यार नहीं, अच्छा इंसान है वो, शायद कुछ उसके साथ हुआ होगा ना तो इसलिए पहले ऐसा था, बट अभी तो यार अच्छे से स्माइल करता है, बात करता है ना। तो अ स्माइल चेंज द पर्सपेक्टिव, और वो और खुश रहने लगा अपनी जॉब में, वो और बेहतर करने लगा अपनी जॉब में, है ना। तो ये था फर्स्ट चैप्टर का। उसके साथ आता है इंटरेस्टेड होने के बाद जब आप लोगों से मिलते हो तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप उनको जेन्युइनली अप्रिशिएट करो, है ना। लोगों को जेन्युइन एप्रिशिएशन बहुत पसंद है, मक्खनबाजी नहीं। कि बहुत सी बार हम वही अगेन मतलब के लिए कुछ अच्छा बोल देते हैं, है ना, तो वो पता चल जाता है लोगों को। मक्खनबाजी में और एक जेन्युइन एप्रिशिएशन में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताना चाहेगा? बिल्कुल, एक मोटिव होता है, सेल्फिश मोटिव, और टेम्पररी रहती है। बिल्कुल, काम हो गया बाहर में जाओ बोलो। थैंक यू, अप्रिशिएट भी कर दिया, वाह तो जो मक्खनबाजी है वो मुंह से निकलता है, जो एप्रिशिएशन है वो दिल से निकलता है ना। और आप जेन्युइनली वो नोटिस करते हो। तो एप्रिशिएशन पे एक स्टोरी है कि अगेन एक पोस्ट ऑफिस क्लर्क था जो रूड था और बहुत बुरी तरीके से लोगों से बात करता था। तो डेल कार्नेगी का एक स्टूडेंट आता है और बोलता है कि यार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप अप्रिशिएट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो वो बोलता है कि यार थोड़ा टाइम दो, सोचो यार कुछ तो, क्यों है रूड, वो कारण सोचो क्यों है रूड, है ना, क्या चीज़ वो कुछ तो बढ़िया कर रहा होगा। तो वो नेक्स्ट डे जाता है पोस्ट ऑफिस में, बोलता है यार आप ना बहुत ही निपुणता से काम करते हो, बहुत इफेक्टिवली काम करते हो, मतलब सही बात है, आपके लिए तो ज़रूरी है रूड होना क्योंकि आपका काम अच्छा हो रहा है। वो क्लर्क के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो फ्रेंड बन जाते हैं, मतलब फ्रेंडली हो जाते हैं उस मोमेंट के लिए। तो ऐसी चीज़ है एप्रिशिएशन कि जब आप अप्रिशिएट किसी को करते हो तो लोग जो है वो और आपके पास आ जाते हैं, है ना। लोगों को अच्छा लगता है अपनी क्योंकि हम हमेशा अननोटिस्ड फील करते हैं जब भी आप काम करते हो, कुछ भी करते हो। कभी ऐसा हुआ है घर में आपने कुछ काम किया और किसी ने उसकी तारीफ नहीं की, हुआ है किसी के साथ? हैंड रेज हो सकता है। कभी काम में ऐसा हुआ है आपने बहुत मेहनत किया और किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया? नहीं। जॉब, हाँ, कभी कभी भी ऐसा हुआ है कि आपने कोई दिल लगा के कुछ चीज़ की, कोई अच्छी चीज़ की और किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया उस चीज़ को, तो ओके, तो बुरा लगता है, राइट। वी ऑल वांट कि कुछ तो कोई देखे, तो नोटिस्ड फील होने चाहिए ना लोग। तो दैट इज ऑल्सो अ कोर ऑफ हाउ टू मेक फील समवन इम्पॉर्टेंट। कैसे किसी को हम इम्पॉर्टेंट फील कराए, वो भी उसका एक पार्ट है। तो ये दो लेसन्स जो हैं वो हमारे पहले 3 चैप्टर से मिलते हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर आपको बहुत अच्छा किसी का दोस्त बनना है और जेन्युइन कनेक्शन बनाना है तो हम हमेशा एक जानवर जो हम सबको बहुत पसंद है वो है डॉग। तो हमें डॉग से सीखना चाहिए। वो कैसे भागा भागा आता है जब आप घर पे आते हो, आपको इम्पोर्टेंस देता है वो, है ना। वो कैसे आपकी चीज़ें करने लगता है, आपको अप्रिशिएट करने लगता है, मतलब आपको अच्छा लगता है उससे बात करके। तो वी शुड लर्न फ्रॉम डॉग हाउ टू मेक अ जेन्युइन फ्रेंड्स एंड हाउ टू मेक अ जेन्युइन कनेक्शन, ठीक है। अब हम 4 to 5 के चैप्टर के कंसोलिडेशन में आते हैं, जिसका नाम मैंने दिया है द पावर ऑफ काइंडनेस। तो एक स्टोरी है अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन जब जवान थे तो वो बहुत ही गुस्सैल इंसान थे। तो उनको कोई पसंद नहीं आता था, वो उसको बहुत बुरा बोलते बोलते चिट्ठी लिख के भेज देते थे
कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम में ये खूबियाँ नहीं है, ऐसा करके भेज देते। जूनियर के साथ तो ऐसा करते थे, सीनियर्स के साथ वो चिट्ठी लिखते थे और ऐसे कहीं फेंक देते थे, कोई पढ़े और बातें बनाने लगे, ठीक है। तो वो उनका तरीका था लोगों को परेशान करने का, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, चीज़ें काम पे नहीं होती थी। तो एक बार उन्होंने किसी पॉलिटिशियन को ना इंसल्ट कर दिया। उस पॉलिटिशियन ने बोला चलो अभी हम ना एक डुअल मैच करेंगे। लिंकन डर गए कि यार ये तो सोचा ही नहीं था, मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे। मतलब थैंक गॉड वो डुअल मैच हुआ नहीं, पर उनको एक लेसन मिल गया कि जब भी हम क्रिटिसाइज़ किसी को करते हैं तो हमारे उनसे रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो उसके बाद एक सिविल वॉर के टाइम पे जो जनरल थे उन्होंने एक डिसीजन लिया, और वो डिसीजन उनको लिंकन उसके सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं थे। उनको वापस से गुस्सा आया, वो घर गए, उन्होंने चिट्ठी लिखा, बहुत बुरा लिखा और एक चिट्ठी भेज दिया। जो चिट्ठी भेजा था उसमें उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया था जनरल को कि मुझे पता है आप बहुत अच्छे लीडर हैं, मुझे पता है आपके ये डिसीजन क्यों लिया है, पर मुझे लगता है अगर ये डिसीजन होता तो और बेहतर होता। और उनके जनरल को वो लेटर बहुत पसंद आया। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने उनकी बहुत निंदा की थी, पर वो कभी दिया नहीं। जब वो मर गए तब वो चिट्ठी मिली। तो कैसे हम जब किसी को एप्रिशिएटिवली सजेस्ट करते हैं तो लोग कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। एक स्टोरी है कि एक औरत थी जो काम बहुत अच्छा करती थी, बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी उसको, उसने जॉब छोड़ दी। पर उसका कारण पूछा गया तो उसने बोला मेरी सब कमियां बताते रहते हैं, मुझे कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता। तो इस लेसन से ये सीख मिलती है कि पैसे से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अप्रिशिएशन। बहुत सी बार आपको पैसा भी बहुत अच्छा मिल रहा होता है पर आपको मज़े नहीं आ रहे होते, आप सोचते हो यार इससे कम वाली जॉब कर लेता, वहाँ ज़्यादा अप्रिशिएट हो रहा होता। क्यों? वो फीलिंग क्यों आती है? अगेन बैक टू चैप्टर 1, फीलिंग ऑफ इम्पॉर्टेंस। जो हम चाहते हैं वो हमें देना पड़ेगा। अगर है नहीं कल्चर तो वो कल्चर बनाना पड़ेगा, किसी को अप्रिशिएट जेन्युइनली करना पड़ेगा, है ना। उन्होंने ऐसा कहा है डेल कार्नेगी ने कि कोई भी बेवकूफ़ इंसान भी किसी की कमियां निकाल सकता है, पर एक कैरेक्टर्ड और एक सेल्फ कंट्रोल्ड इंसान ही है जो चीज़ों को समझ के चीज़ों में खूबियाँ निकाल सकता है या फिर चीज़ों को माफ़ कर सकता है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं कुछ जिससे आप एग्री करते हो या नहीं करते हो, वो हैंड रेस करके बताइएगा। 90% लोग जो हैं, जब भी आप जिनको भी आपने कभी लाइफ में किसी की भी निंदा की हो, क्रिटिसाइज किया हो, तो वो डिफेंसिव हो गए। एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा? डिफेंसिव हो गए लोग आपके, आपने किसी को भी क्रिटिसाइज किया तो। अगर आपको कभी भी बहुत बुरा क्रिटिसिज्म मिला है तो उतना ही दर्द हुआ है जितना फिजिकल पेन होता है। हुआ है? बिल्कुल। जो लोग हैं वो जल्दी अपनी मिस्टेक को मान लेते हैं अगर उनको बहुत बुरी तरीके से आप क्रिटिसाइज या उन पर अटैक ना करो तो। ऐसा फील हुआ है आपके साथ? तो अगर आप उनको बहुत अटैक ना करने लगो कि नहीं तुम्हारी गलती है, तो लोग कुछ टाइम बाद खुद ही आ जाते हैं यार मेरी गलती थी। ऐसा हुआ है ना? ओके। सो ये जो लेसन की लर्निंग्स हैं वो इसमें है कि अगर आप दोस्त बनाना चाहते हो या लोगों को चाहते हो कि वो आपकी बात सुने, तो उनको क्रिटिसाइज़ करना बंद करो और उनको समझना शुरू करो। और उसके साथ उन्होंने बताया था कि जितने भी वर्ल्ड के बिगेस्ट क्रिमिनल है ना, उनके पास भी उनका रीज़न है करने का। उनसे आप पूछो तो वो कहते हैं मैं दिल का बहुत अच्छा इंसान हूँ पर मेरे साथ ऐसा हुआ था। उनकी भी एक अलग स्टोरी होती है, राइट। तो वो तो मैं अलग बात कर रही हूँ, बट हमको ये समझना पड़ेगा कि जो भी इंसान कोई गलती कर रहा है तो उसका भी कोई कारण होगा और हमको वो समझने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है सीक्रेट टू गेटिंग पीपल एग्री विद यू। अब लोगों को मनाएं कैसे? तो मेरा ये सवाल है कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई आइडिया दिया हो और वो माना नहीं गया? हुआ है? किसके साथ हुआ है? आप लोगों के आइडिया मान लिए गए हमेशा?
नहीं तो हाथ खड़ा कर दो यार, थोड़ा एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए ना, मैं ही बोल रही हूँ। ठीक है, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी आर्ग्यूमेंट में थे और आपको पता था कि आप सही हो, पर फिर भी सामने वाला नहीं मान रहा था? हुआ है ऐसा? तो बहुत से लोग हम ये गलती कर बैठते हैं कि चीज़ों को ना लॉजिक से जीतने की कोशिश करते हैं कि यार ये फैक्ट है, ये वो है, ऐसा ही होता है, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। हम भूल जाते हैं कि इंसान जो है वो लॉजिकल पर्सन ही नहीं है, वो इमोशनल पर्सन है। उसकी भावना को ठेस पहुंचा तो तुम कभी नहीं जीतने वाले। ठीक है, तो अगर आपको किसी के साथ बातों पे एग्री होना है तो आपकी उसकी बात समझनी पड़ेगी। तो वो कहते हैं कि अगर आपको आर्ग्यूमेंट में जीतना है तो उसका एक ही रूल है, जीतना नहीं, बेहतर होना है। उसका एक ही रूल है कि आप आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करो। तो अगर आपको आर्ग्यूमेंट जीतना है तो उसको आप अवॉइड करो और उससे सवाल पूछो, क्यूरियस हो वो ऐसा क्यों सोचता है। और जैसे ही उसने हाँ हाँ बोलना चालू किया और आप लोग एक कॉमन ग्राउंड पे आ गए, मतलब आप जीत गए। ठीक है, आप दोनों ही जीत गए। ओके, तो एक उनकी स्टोरी है कि कार का एक सेल्समैन था जो जाना जाता था कि वो कभी आर्ग्यू नहीं करता। तो एक इंसान आया उसके पास और वो मतलब ऐसा हो जाता है ना कि मुझे तो कार खरीदनी ही नहीं है, मैं मेरे दोस्त के लिए आया हूँ, मुझे तो खरीदनी है, मुझे तो देखना भी नहीं है। ठीक है, तो उसने कोई बात नहीं सर, आपकी चॉइस है। धीरे धीरे बात की, उसने बोला कि यार सर आप देखते क्या हो वैसे, कभी भी अगर आप कार लो तो उसमें देखोगे क्या। और ये क्वेश्चन से उनको उनका कॉमन ग्राउंड मिल गया। उसने उस कार कुछ बताया होगा कि ये कार में मुझे ये पसंद है वो पसंद है, उसने बताया होगा हमारी कार में तो ये है वो है, और उस कन्वर्जेशन के बाद उस इंसान ने कार खरीद ली। तो कभी भी आपको ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेल्स हो जाए या हर चीज़ें मान जाए, पर जो रिजेंटमेंट है, जो मतलब द्वेष है एक दूसरे को लेके, वो नहीं रहता कभी, है ना। वो शायद उस टाइम पे आपके पास चीज़ें नहीं भी हो, बट कम से कम वो टॉपिक पे आप दोबारा कभी बात कर पाओगे, है ना। पर अगर हम लड़ने पे आ जाएंगे तो ऐसा बोला जाता है कि जो भी आर्ग्यूमेंट होता है उसमें कोई नहीं जीतता, बस दो लोग ऐसा महसूस कर रहे होते कि उनकी बात समझी ही नहीं जा रही है ना। दूसरा है कि लोगों को तब अच्छा लगता है जब हम आइडिया देते हैं तो उनको नहीं पसंद आता, उनको लगता है कि कोई हम पे कोई थोप रहा है। लोगों को तब आइडिया पसंद आता है जब उनको लगता है कि वो उनका आइडिया है। सुना है ये कभी आप लोगों ने ऐसा कि हमको तब पसंद आता है जब हमें लगता है वो हमारा आइडिया है, किसी और का नहीं है। तो कभी भी अगर हमें किसी से आइडिया पे काम करना है तो हमें सबसे पहले उसका समझना पड़ेगा कि वो क्या सोच रहा है, और जो हम सोच रहे हैं उसको वापस से एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना पड़ेगा, तो भी जाके वो आइडिया सक्सेसफुल होगा। तो इसमें उन्होंने बेकरी की एक स्टोरी दी है कि एक बेकरी का मैनेजमेंट जो था, उन लोगों ने रूल्स बनाए थे क्लीनलीनेस के, उनके कोई स्टाफ फॉलो नहीं करता था, बहुत बार बोला नहीं किया। उनका जो नया मैनेजर आया वो गया और उसने बोला कि कैसे हम और बेहतर क्लीनलीनेस कर सकते हैं, इस चीज़ की, इस जगह की कैसे रख सकते हैं। तो एम्प्लॉयज़ ने रूल बताया, यार ऐसा कर सकते हैं, ऐसा रूल रख सकते हैं, और कोइंसिडेंटली वही रूल वो भी सोच के गया था। तो उन्होंने बोला अरे बहुत अच्छे सजेशन है, यही हम फॉलो करेंगे, आप इसके इंचार्ज होगे। और वैसे ही वो जो बेकरी है वो और पहले से क्लीन होने लग गई। तो किसी के आइडियाज़ को लेके उसको इम्प्लीमेंट करो तो लोग बहुत जल्दी उसकी ओनरशिप ले लेते हैं। एक स्टोरी है कि एक होटल था जिसमें कोई भी स्टाफ स्माइल नहीं करता था क्योंकि उन्हें पसंद ही नहीं था। तो उनके मैनेजर ने बोला कि जो लोग ज़्यादा स्माइल करते हैं ना उनको टिप ज़्यादा मिलती है। और कल से सबके चेहरे पे स्माइल थी। तो बहुत सी बार ज़रूरी नहीं है आइडिया हो, बट आपको इंटरेस्ट भी पता होना चाहिए। तो एक कॉमन इंटरेस्ट क्या है उसका, और उसको हमें अपील देनी है कि मेरे एम्प्लॉयज़ का क्या एक कॉमन होगा, पैसे का होगा, है ना।
दूसरा एक स्टोरी है ऑफ लाइफ इंश्योरेंस की। एक इंसान जाता है बिजनेसमैन, वो बोलता है मुझे तो लेना ही नहीं है लाइफ इंश्योरेंस। को बोलते होते हैं कि सर ये फ़ायदा है वो फ़ायदा है, तो वो नहीं मानता। एक टाइम के बाद आके वो बोलते हैं कि सर अगर कल को आप चले गए तो आपकी फैमिली को कौन देखेगा। ये सुना ही होगा, लाइफ इंश्योरेंस वाले तो बहुत यूज़ करते हैं, राइट, इसी बुक से निकला है। तो उसने तुरंत ले लिया, है ना। सो अगर आपको किसी का नो को हाँ में बदलना है तो उसकी चीज़ें समझनी होगी, उसकी चीज़ों में हाँ बोलना पड़ेगा, फिर अपनी चीज़ें बताना पड़ेगा। और ऐसा कहा जाता है, एक येस येस टेस्ट है, जिसमें अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो और वो आपकी छोटी छोटी चीज़ों में हाँ हाँ बोल रहा है ना, तो वो बहुत जल्दी बड़ी चीज़ों में भी हाँ बोल देगा। ठीक है, तो ये काम करता है। कुछ साइकोलॉजी जो इसके पीछे है कि 90% नहीं 70% जो लोग हैं वो अपना जो माइंडसेट है, फिक्स माइंडसेट को चेंज कर देते हैं जब उनको लगता है कि यार सामने वाला सुन रहा है। तो जैसे जो कार की सेल्स वाला था, उसमें उसको लगा कि यार ये सुन रहा है मुझे, ये मेरी बातें सुनना चाहता है ना, अगेन मैं इम्पॉर्टेंट हूँ क्योंकि। और फिर जो चीज़ें हैं वो मतलब सॉल्व हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती हैं। एक्टिव लिसनिंग से अगर आप किसी की बात बस अच्छे से सुनो और समझो तो 50% तक आपके जो प्रॉब्लम है, जो मतभेद है, वो सॉल्व हो जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है जो इन चैप्टर में दिया गया है। तो अगर आपको किसी का कोऑपरेशन चाहिए तो इस चैप्टर्स के जो लेसन है कि अगर आपको किसी का कोऑपरेशन चाहिए, किसी का सपोर्ट चाहिए, तो आप उनसे आर्ग्यूमेंट कभी भी मत करो, क्योंकि वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। हमेशा कॉमन ग्राउंड ढूंढो, जब तक आपको कॉमन ग्राउंड नहीं मिल रहा तब तक सवाल पूछते रहो, और जैसे ही वो मिले उसको पकड़ लो, है ना। तो कॉमन ग्राउंड ढूंढो जब आपकी नेगोशिएशन चल रहा है। किसी को भी नहीं अच्छा लगता कि कोई उनको बोले कि आप गलत हो, है ना, कि नहीं तुम गलत हो, जो तुम बोल रहे हो वो सही नहीं है, किसी को नहीं अच्छा लगता, राइट। ऐसा हुआ है ना। तो वो कहीं आपको लेके नहीं जाएगा जब तक आप प्रूव करने की कोशिश करोगे कि नहीं तुम गलत हो। तो हमेशा ये पूछने से पहले कि मैं क्या चाहता हूँ इस आर्ग्यूमेंट से, ये पूछो कि सामने वाला क्या चाहता है इस आर्ग्यूमेंट से, और वो ही चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी। तो पार्ट 1 का जो लास्ट चैप्टर्स की कंसोलिडेशन है 9 से लेके 13 चैप्टर के, उसका मैंने नाम दिया है आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड लीडरशिप। तो क्रिटिसिज्म जो है वो आप लोग समझते हैं, राइट। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बॉस या किसी टीचर के पास गए हो और वो आपकी हमेशा कमियां निकालते हैं, वो बहुत रिलेट कर रहे हैं, राइट। तो या फिर बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं आपको। कभी ऐसा लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ होगा टीचर के साथ, मम्मी पापा के साथ, है ना, या फिर आपके बॉस के साथ। तो वो बोलते हैं कि किसी को भी नहीं अच्छा लगता जब आप किसी को ऑर्डर देते हो या किसी की कमियां निकालते हो। उसका एक तरीका होता है, और अगर आप उस तरीके से करोगे तो आपकी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो हम कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो एक स्टोरी दी है कि एक बहुत ही टैलेंटेड एम्प्लॉय हायर किया एक ऑर्गेनाइजेशन ने, और जिसके भी वो अंडर था, वो बॉस मतलब काफ़ी टैलेंटेड था, तो बॉस इतना टैलेंटेड नहीं था। तो जब भी बॉस कहीं बात कर रहा होता था या कुछ भी कर रहा होता, तो उसके एम्प्लॉय को बहुत पसंद था उसको करेक्ट करना, और वो सोचता था कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ यार, सर को नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ। सर को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। तो जब प्रमोशन हुआ तो उन्होंने किसी और बंदे को चूज़ किया और उसको चूज़ नहीं किया। तो एक स्टोरी है बेंजामिन फ्रैंकलिन की कि वो कभी भी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करते थे तो वो हमेशा ये बोल के करते थे कि मैं शायद गलत हो सकता हूँ पर मैं ऐसा सोचता हूँ। तो लोग ना उनकी बात जल्दी सुन लेते थे। तो ये जो 2 एग्जाम्पल्स हैं वो हमें
गाइड कर रहा है कि हम कैसे किसके साथ रिएक्ट करते हैं। तो जो पहला स्टोरी मैंने बताया आपको मैनेजमेंट का, उसमें डेल कार्नेगी बोलते हैं कि लोगों को उनका चेहरा छुपाने का मौका दो। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको सबके सामने टोकने की ज़रूरत नहीं है, उसको गलत प्रूफ करना नहीं है सही, उसको आप मौका दो। तो आप उनसे कभी अलग में, या ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार किसी को बोलो ही कि वो गलत है, पर अगर आपके पास मौका है तो आप उनको अलग से ले जाके बताओ। उन लोगों से हमारा कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होता है जिनको हम सपोर्ट करते हैं। तो कोई यहाँ पे भाई बहन लोग हैं जिनके भाई हैं, जिनके बहन हैं, ऐसा हुआ है आप लोगों ने सिबलिंग्स में एक दूसरे की चीज़ें छुपाई हो, बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, राइट? तो ऐसे हमको दिस हेल्प्स एवरीवेयर, ओके। दूसरा है कि अपनी गलती पहले एक्सेप्ट कर लो। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन यही करते थे। मैं गलत हो सकता हूँ, मतलब गलती एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? जब हम, क्योंकि ऐसा है कि जब हम खुद की गलती एक्सेप्ट करते हैं तो सामने वाला और जल्दी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो भी कहेगा हाँ शायद मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आपको किसी की कमी दिखानी है तो पहले अपनी कमी से स्टार्ट करो और फिर दूसरों की कमी आप बताओ। तो उससे लोग जो है वो जल्दी कनेक्ट करते हैं। तो स्टडीज़ ये बोलती हैं कि जब हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उनको वही फिज़िकल पेन महसूस होता है, ठीक है। और क्रिटिसाइज़ करने से पहले अगर हम किसी को अप्रिशिएट करें और फिर उनमें ऐड करें, तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जो बात हुई थी वो कैसे करते हैं वो बताया है डेल कार्नेगी ने। कि रोजवेल्ट थे जो कि प्रेसिडेंट थे अगेन और 25th यूनाइटेड स्टेट्स में, और उनके अंदर एक स्टाफ था जो बहुत मतलब स्ट्रगल कर रहा था काम करने में। और जब कोई स्ट्रगल कर रहा होता है काम करने में तो आपको पता होता है कि उसको भी पता होता है कि यार मतलब मेरे में कुछ कमी है और लोग देख रहे हैं वो चीज़, है ना। तो रोजवेल्ट उसके पास जाते हैं और बोलते हैं बहुत प्यार से कि यार तुम ना पहले बहुत अच्छा काम करते थे और मुझे यकीन है कि तुम अभी भी और अच्छा करने लगोगे। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम, मुझे पता है अच्छा काम करते थे पर अभी नहीं कर रहे हो। हम लोग कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, यार तुम अच्छा काम करते थे पर अब बात नहीं रही वो, है ना। बट उन्होंने एक विश्वास उसमें जगाया कि तुम पहले बहुत अच्छा काम करते थे और मुझे यकीन है अभी तुम वापस से वो जो है चीज़ें सही कर दोगे, मुझे तुम पे विश्वास है। तो दैट इज़ हाउ यू क्रिटिसाइज कंस्ट्रक्टिवली, कि इंसान को उसकी काबिलियत पे वापस से विश्वास आ जाए, ठीक है। 83% जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाती है जब हम किसी की बात ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। तो जो लेसन है इन चैप्टर्स के, कि अगर आपको किसी को करेक्ट करना है तो सबसे पहले खुद की मिस्टेक को एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं है कि हमने वो मिस्टेक कभी शायद नहीं की हो, या ऐसा भी नहीं है कि शायद अगर हम उसकी जगह पे होते तो मिस्टेक वो नहीं होती हमसे, राइट। तो कहीं ना कहीं से लिंक ढूंढो कि हम भी कैसे उस मिस्टेक से कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद उसकी कमी पे बात करो। लोगों को अपना चेहरा छुपाने दो जब वो मिस्टेक कर रहे हैं, और उनको अलग से बताओ, सबके सामने मत बताओ। और कभी भी आपके पास कोई कंप्लेन करने आ रहा है आपकी या किसी और की, ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपसे कंप्लेन करने आते हैं अपनी लाइफ का, हम बोलते रोने आ जाता है ऐसा करें है अपने लोग में, शायद हमारे ग्रुप में कोई होगा जो रोने आ जाता होगा ऐसा। तो हम क्या करते हैं, हम सजेशन देने लगते हैं, यार तुम ऐसा कर लो, यार तुम वो कर लो ना, यार क्यों नहीं करते हो तुम, है ना। पर वो चीज़ें कभी वो करता भी नहीं है और वो अगली बार वापस आ जाता है आपके पास। तो उस चीज़ से बचने का तरीका है कि लोगों से सवाल पूछो और उनको ही बात करने दो। आप उनको ही बात करने दो, वो खुद ही शांत हो जाएंगे और चीज़ें समझ जाएंगे, बस आप सुन लो। तो बी एन एक्टिव लिसनर,
और वैसे ही आपकी जो क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट है या फिर वो जो कंप्लेन कर रहा है वो ख़त्म हो जाएगी। और आप ये आजमा के देखना, क्योंकि ये एक्चुअल में ऐसा होगा कि आपको उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी को भी अगर आपको इन्फ्लुएंस करना है तो एक और एक तरीका है कि उनकी इंटरेस्ट को अपील करो, है ना, कि वो क्या चाहते हैं। और उसमें काम आता है हमारा मॉरल अपीलिंग, कि मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छे लीडर हो। तो लिंकन ने क्या किया जनरल के साथ, जब उसने चिट्ठी लिखी उसने लिखा कि मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे लीडर हो और आप ये डिसीजन पे सोचोगे। तो उसने क्या चीज़ उसकी हिट की, उसकी लीडरशिप, कि मैं अच्छा लीडर हूँ तो मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा ये चीज़ों को, है ना। तो कभी भी आप लोगों की इंटरेस्ट की चीज़ों को अपील करोगे तो वो उस चीज़ों को बेहतर तरीके से सोचेंगे। तो ये जो है वो फर्स्ट पार्ट का कंक्लूजन है कि अगर कि कैसे हम लोग हमें पसंद कर सकते हैं, कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं और कैसे हम आसपास के लोगों को इंस्पायर और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अभी हम सेकेंड पार्ट पे बात करेंगे जिसका है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। तो बहुत से लोग जो हैं वो काम में खुश नहीं रहते हैं, है ना। बहुत से लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं, काम ही नहीं, शायद पढ़ाई में भी आप वो एक्सपीरियंस नहीं ले पा रहे हो या वो मज़े नहीं आ रहे आपको। वो क्यों होता है? ये 4 कारणों की वजह से होता है। एक तो हम किसी बेहतर चीज़ का हमेशा वेट करते रहते हैं कि यार कुछ बेटर होगा, या फिर मैं बेटर जॉब करूँगा, या मैं कोई और कोर्स ले लेता हूँ, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। फिर दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, कंपेयर। वो बहुत खुश है वो कोर्स में, वो जॉब में, यार मेरा भी कहीं बात करके लगा देना, है ना। तो हम कंपेयर करने लगते हैं या अपने कलीग से कंपेयर करने लगते हैं, यार इसको छुट्टी कैसे मिल जा रही है, मुझे नहीं मिल रही, ये इतना अच्छा कैसे कर रही है जो इसको अप्रेजल मिल रहा है। तीसरा, हम बहुत अपना महत्व खो देते हैं। कभी कभी हमें अपनी महत्व महसूस नहीं होती है कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं, और कभी कभी हम कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग्स में फंस जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल जो है उन्होंने दिया है कि एक एम्प्लॉई था जो अपनी जॉब से कभी खुश नहीं था, और वो बस जॉब पे आके सपने देखता था कब मैं दूसरी जॉब मुझे मिले और मैं यहाँ से पीछा छुटकाऊँ। तो उसके बॉस ने एक ऐसी चीज़ बोली जो उसको सोचने में मजबूर किया, एंड उसने एक्शंस लिए। तो उसके बॉस ने उसको बोला कि तुम्हें हम पैसे देते हैं तुम्हारे समय के, वो समय तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें उसको कितना महत्वपूर्ण या कितना मीनिंगफुल बनाना है। एंड उसको रियलाइज़ हुआ कि जो वो सपने देख रहा है कि ये ऐसा एक दिन होगा, वो आज भी उन पे काम कर सकता है और वो अपने लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए मीनिंगफुल बना सकता है। तो हम लोग हमेशा जो दूसरी चीज़ें कंपेयर करते हैं, हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हमारे पास अभी करंट में क्या अच्छी चीज़ है, हम उसको अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। तो आज आप सबके लिए एक टास्क है कि घर पे जाइएगा तो कुछ अच्छी चीज़, जिस चीज़ से भी आप परेशान हैं उसकी कोई अच्छी चीज़ देखिएगा। जो बुरी चीज़ है ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए वो बुरी है। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है ना वो हमें अच्छी लगती है, ठीक है। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पर हम सोच के जो हमारे पास अच्छी चीज़ें हैं उनको खो देते हैं। तो जो हमारी अच्छी चीज़ें हैं हम उसके साथ काम करके और बेहतर कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि जो काम से परेशान है वो काम से नहीं परेशान है, वो काम को किस तरीके से देख रहे हैं उससे परेशान है। और अगर आप अपने काम का नज़रिया बदलते हो तो आपको उसी जॉब में मज़े आने लगेंगे। बहुत से लोग सेम पैसा कमाते हैं, सेम जॉब करते हैं, पर एक इंसान ज़्यादा खुश होता है, दूसरा इंसान ज़्यादा दुखी रहता है ना। तो हमें हमारा फोकस शिफ्ट करना है कि कैसे हम और ज़्यादा जो हमारी चीज़ें हैं कंट्रोल में उन पे हम काम करें।
दूसरा उन्होंने लेसन दिया है कि हम कैसे डे टाइट कंपार्टमेंट में हमें रहना है। डे टाइट कंपार्टमेंट मतलब प्रेजेंट, इस मोमेंट में। जैसे बहुत से लोग हैं जो हम शायद अभी आगे का सोच रहे होंगे, घर पे जाके क्या बनाना है, घर पे जाके क्या पढ़ना है, कल का कौन सा काम देखना है मुझे, है ना। हम आज नहीं जी रहे, अभी नहीं जी रहे, है ना। तो आज में जीना है। तो उन्होंने एक ऐसी स्टोरी बताई है कि एक शिप था, बहुत बड़ा शिप था, उस पर एक पायलट था और एक रूम में पानी आ गया, वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा, तो उन्होंने वो रूम बंद कर दिया और उसको सील कर दिया और शिप बढ़िया चलने लगी। तो पास्ट और फ्यूचर की जो टेंशन है ना, वो ऐसी ही है। वो जब हमें आती है ना, हम डूब जाते हैं, हम आज ही डूब जाते हैं। तो हमको उसको बंद करके रखना पड़ेगा। जो हमारा पास्ट है और जो हमारा फ्यूचर है, उसको बंद करके रखना पड़ेगा, ताकि हम आज में जी सके। और आज क्या चीज़ हमें प्रॉब्लम दे रही है, कल की नहीं, एक महीने की बात की नहीं, एक साल बाद की नहीं, आज ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे प्रॉब्लम दे रही है और मैं उसको कैसे बेहतर, अपनी लिमिट में मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ। जब से हम वो सोचने लगेंगे तो हम ज़्यादा खुश रहेंगे। दूसरा उन्होंने बताया है कि हम कैसे परेशान होना सोच दें, जो हमें कल की बातें सताती हैं। तो उन्होंने 3 स्टेप्स बताए हैं कि हमें क्या करने चाहिए। सबसे पहला है, अपने आप से पूछो कि क्या सबसे बुरा हो सकता है। ये सवाल आपने सुना होगा पहले, किसी ने आपसे पूछा होगा कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा होगा, है ना। तो वो जानना और उसको एक्सेप्ट करना। तो जो दूसरा स्टेप है, उसको एक्सेप्ट करना कि यार ये ज़्यादा से ज़्यादा बुरा होगा और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये होगा। और फिर एक्शन लेना कि उस चीज़ को हम कैसे कम कर सके या उससे आगे बढ़ सके। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक बिजनेसमैन था जिसकी रातों की नींद खराब हो गई थी, क्योंकि उसका जिस पे भी उसने इन्वेस्ट किया था, उसके पैसे दाम गिरते जा रहे थे। तो उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तो डेल कार्नेगी ने उससे पूछा कि क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसने कहा मैं पैसे खो दूंगा। तो डेल कार्नेगी पूछते कि फिर क्या करोगे अगर पैसे खो दोगे? तो मुझे वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसमें बुरा क्या है? एक्सेप्ट इट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं दोबारा स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड वो उस इंसान को एक शांति मिली मन की, जिससे वो आज की चीज़ों पे फोकस करने लगा और उसने अपना बिजनेस जो है वो गिरते हुए होने से बचा लिया। फिर उन्होंने 4 हैबिट्स के बारे में बात किया है कि कैसे हम काम में अपना जो टेंशन है उसको और कम कर सकते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा काम आ गया, सबकी डेडलाइन पास में ही है, जो लोग काम करते हैं या जो लोग पढ़ते भी हैं तो असाइनमेंट बिल्कुल, है ना। तो ऐसा हुआ है राइट, कि वो एकदम से आ जाते हैं और ये सब देना है, तो इंसान हम और घबराने लगते हैं, है ना। तो एक सवाल था कि फिजिकली स्ट्रेस है आपको, राइट। आपने कैसे ऐसे बोलते ना, काम का मेंटल स्ट्रेस नहीं है, टायर्डनेस, हाँ टायर्डनेस रहता है ना। तो ये भी उन्होंने डेल कार्नेगी ने बोला है कि इंसान का जो दिमाग है वो इतनी ही स्पीड से 24 घंटे काम कर सकता है, पर जो टायर्ड फीलिंग है वो स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से कहीं ना कहीं आती है, या कल की टेंशन से आती है। उन्होंने उसमें एग्जाम्पल दिया था कि एक इंसान था जिसको जॉब बिल्कुल पसंद नहीं था, पर वो एकदम थके हारे आया और उसको पता चला कि उसके सबसे अच्छे दोस्त की पार्टी है और वो तुरंत रेडी होके गया और उसने पूरी रात पार्टी की। उसकी थकान जो है वो ख़त्म हो गई, है ना। तो जब हमारी इंटरेस्ट की चीज़ें आती हैं हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, हम थकान भूल जाते हैं। और वो जो थकान है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस के कारण होता है ना, कि वही या तो बोरियत जो है, तो उस चीज़ को हमें डील करना है कि हम बोर क्यों हो रहे हैं। तो हम बोर अपने काम में अगर हो रहे हैं या स्ट्रेस हो रहा है, तो बोरियत के लिए उन्होंने बोला है कि अपने काम को और चैलेंजिंग बनाओ। अगर आपका जॉब सिर्फ फॉर्म फिल करना है, तो आप देखो कि कल मैंने कितने फॉर्म फिल किए थे, आज मुझे उससे ज़्यादा करना है, कल मुझे उससे ज़्यादा करना है। तो गेम की तरह आप अपने काम को सोचो और उसकी तरह करो, तो आपकी जो स्पीड है, जो एक्टिवनेस है, वो बढ़ेगी। दूसरा उन्होंने बोला कि बीच बीच में ब्रेक लो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेकेशन लेते हैं और फिर हम सोचते हैं यार एक
वेकेशन लेंगे 1 हफ्ते का, कुछ काम नहीं, कुछ टेंशन नहीं, और उसके बाद में आके बहुत अच्छे से काम करूँगी या करूँगा। पर जब हम वापस काम पे आते हैं हमें वो काम और बुरा लग रहा होता है। हम सोचते हैं क्या यार, वेकेशन क्यों ख़त्म हो गया। ऐसा होता है राइट। तो वो बोलते हैं कि वो वेकेशन कभी आपको हेल्प नहीं करेगा, वो और आपको डीमोरलाइज कर देगा। तो वेकेशन लो, अच्छी बात है, पर काम के बीच बीच में शेड्यूल ब्रेक लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के रखेगा। तो जो आप काम कर रहे हो उसमें बीच बीच में ब्रेक का इंतज़ाम रखो, और ब्रेक ऐसा करो कि आप एकदम रिलैक्स हो जाओ। तो जो भी आपकी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं या तो आप वो कर सकते हो, या तो उन्होंने बताया है कि उनके एक पूरी रूटीन बताई है कि कैसे आप अपनी आँखों को रिलैक्स करके और पूरा आँखें बंद करके और बोल सकते हो कि सब रिलैक्स है, और जो भी आप करना है आप उसमें कर सकते हो, है ना। फिर अपने डेस्क को क्लियर रखो, क्योंकि जब जितना ज़्यादा क्लटर डेस्क रहता है उतना आप परेशान होते हो, आपको लगता है ये काम भी है वो काम भी है। तो पूरा डेस्क खाली होना चाहिए, सिर्फ एक काम एट अ टाइम लो और अपने काम को प्रायोरिटाइज करो। जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उसको पहले लो और उसी को आप करो जितना बेहतर हो सके। भूल जाओ, है ना, अपना बेस्ट दो आज के टाइम पे। और फिर लोग अगर क्रिटिसाइज़ करते हैं उस चीज़ को तो उसको आप मत सुनो। अगर अच्छी चीज़ें हैं तो उसको ले लो, और अगर बुरी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि वो आपसे वैल्यू नहीं करती हैं, आपसे अलाइन नहीं करती हैं, तो आप उसको मत लो। लास्ट में मैं थोड़ा एंड करना चाहूँगी क्योंकि टाइम भी कम है हमारे पास। एक सवाल से कि हम लोग बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे, या सबसे ज़्यादा चीज़ें स्ट्रेस जो देती है वो आजकल शायद मनी ही है, कि हम मनी के पीछे भागते हैं, राइट। तो हम लोग बेस्ट बनने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने बोला कि सब अलग अलग होते हैं, पहले तो खुद को पहचानो। आप चट्टानों का ऊंचाई बन सकते हो, जब सबसे ऊंची चट्टान बन सकते हो, पर क्या पता अगर आप घास ही हो सिर्फ, तो आप बेहतर घास बनो, आप ज़्यादा हरी घास बनो। ज़रूरी नहीं है कि आप भी चट्टान ही बनोगे। तो उनका ये कहने का तरीका है थोड़ा मजाकिया तरीके से कि सब अलग होते हैं, और आप अगर दूसरों को देख के वो चीज़ बनने की कोशिश करोगे तो आप नहीं रहोगे। वो घास कभी ऊंची चट्टान नहीं बन पाएगी, तो आप सबसे हरी घास बनो, सबसे ऊंची घास बनो। तो जो आप है पहले उसको पहचानो और फिर उस पर काम करो। और लास्ट में मैं बस ये एंड करना चाहूँगी कि क्या मैं अगर आपको 1 मिलियन दूँ तो आप मुझे अपनी दोनों आंखें दोगे दान में? दोनों हाथ दोगे? दोनों पैर दोगे? नहीं दोगे। तो जो पैसा है उसकी यही वैल्यू है ना। जब आप हो तो सब है, जान है तो जहान है, वरना कुछ नहीं है। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। मैं बस 2 मिनट लेके संस्था के बारे में बता दूँ। मैं देसाई फाउंडेशन ट्रस्ट से हूँ और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो NGO है जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती है। और मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है क्योंकि मेरी जॉब मेरी पहचान है। हम गुजरात की जो है ऐसी संस्था है जिसको हमें अवार्ड मिला था, जो बहुत अच्छा काम कर रही है महिला सशक्तिकरण पे। और लास्ट ईयर हमें भानु बहन से जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में है, उनसे हमें अवार्ड मिला था उस चीज़ को लेके। बट ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं और आपको प्रोग्राम में कभी चाहती हूँ आप लोग आओ, पर शायद आओ या नहीं आओ, पर बहुत अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं। और मेरे को गर्व होता है कि मैं उस प्रोग्राम की मैनेजर हूँ, वहाँ पे प्रोग्राम मैनेजर हूँ। जिस प्रोग्राम को मैं मैनेज करती हूँ उसकी भी एक अच्छी बात बताना चाहूँगी, और मुझे उसमें भी बहुत गर्व है कि अभी हम लोगों ने मध्य प्रदेश में महिला पुलिस थाना, जितनी भी महिला पुलिस थाना है, वहाँ पे वेंडिंग मशीन लगाई है पैड्स की। तो मैं मानसिक धर्म जागृति के कार्यक्रम देखती हूँ जिसमें हम खुद का पैड बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेल करते हैं एंड गरीब महिलाओं को रोज़गार देते हैं और जागरूक करते हैं। तो उसमें अभी हम लोगों ने सारी जगह MP में वेंडिंग मशीन लगाई है महिला पुलिस ऑफिसर्स के लिए, जो कि 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, और उनको अवेयरनेस दिया है। और एक पहला स्टेप है हमारा मध्य प्रदेश को पीरियड फ्रेंडली बनाने के लिए। तो उस प्रोग्राम की मैं मैनेजर हूँ, उसका मुझे गर्व है और उस चीज़ को मैं चाहती थी शेयर करूँ आप सबके लिए। मैं हमारी जो प्रोडक्ट है उसका एक सिंगलेट लेके आई हूँ, तो जाने से पहले प्लीज़ मेरे से लेके जाइएगा और यूज़ करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे
तो आप बेशक खरीदेगा। आप लोग, आई एम श्योर आप लोग कुछ ना कुछ यूज़ करते ही होंगे। हमारी जो संस्था है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पैड्स बनाती है और चीप रेट्स में है। उसी क्वालिटी के पैड जो हैं वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेंगे, पर अगर आप ये पैड खरीदोगे तो लाखों महिलाओं की हेल्प करोगे। तो आपके एक पीरियड से हम किसी और को रोज़गार दे रहे होंगे, तो ज़रूर उसको आप लीजिएगा। थैंक यू। ખૂબ સુંદર પ્રજ્ઞાબેન. આપ સૌને સૌથી પહેલાં તો એક ધન્યવાદ કે પ્રજ્ઞાબેને છે ને ખૂબ સરસ એક વાત કરી કે આપણું વર્ક શેડ્યુલ હોય ને એમાં આપણે ટાયર્ડનેસ ફીલ કરતા હોય ને તો કંઈક બ્રેક લેવો જરૂરી. દરેકનો કંઈક ને કંઈક બ્રેક શેડ્યુલ તમારું કંઈક ચેન્જ કરવાનું કે તમને બોરિંગ ના લાગે. તો આપ સૌને એટલા માટે ધન્યવાદ કે જે તમે વાર્તાલાપમાં આવો છો અને આ રીતે વાર્તાલાપ જે સાંભળો છો, કોઈ કશે ને કશે કંઈક તો કામ કરતા જ હશો ડેલી લાઈફમાં. તમને તમારો રસ ખબર છે, શેડ્યુલ બ્રેક કરવાનું ખબર છે, એના માટે તમે અહીં છો અને એમાંથી તમને ઉર્જા મળે છે. એટલે સૌથી પહેલાં તો તમને સૌને એના માટે ધન્યવાદ અને તમારા સૌના માટે એક તાળી કે એટલીસ્ટ યુ નો કે તમારું શેડ્યુલ બ્રેકર શું છે. હવે આપણે બાકીનું સેશન, પ્રશ્નોત્તરી સેશન ઓપન કરીએ. તમારે કોઈ પ્રશ્ન હોય અથવા તો જે સરસ વાત કરીને કોઈ સારું બોલે તો એને પ્રતિભાવ આપો, સાચું એપ્રિશિએશન આપો. તો એ પણ તમારે આપવું હોય તો એના માટે આપણો સેશન ખુલ્લો છે. हाँ, निशा प्रज्ञा जी, आपका बहुत अच्छा, मतलब इतना काम पूरी तरीके से आपने जो समझाया, शायद ये सारी बातें सबको पता थी, मगर जो आपका समझाने का अंदाज था और बहुत ही प्यारा और निराला. थैंक यू वेरी मच. हाँ, पाछड़ साथी. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये ही बुक लेनी है, वो आपको कैसे रियलाइज हुआ? लाइक ऐसी साइकोलॉजी की बुक लेना लाइक इजी नहीं होता है ना. पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये बोरिंग लगी कैसे पढ़ेंगे, तो आपको ऐसा कोई रीज़न होगा ना जिससे आपने ये सेलेक्ट की. तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी बुक रखते हैं और परेशान तो सभी रहते हैं अपनी जॉब से, अपनी लाइफ से. मैं भी बहुत परेशान थी लिटरली, और मैंने देखा और मेरे को बहुत मजाकिया लगा इसका टॉपिक. यार ये मैं पढ़ूंगी लोग क्या सोचेंगे, है ना. बट फिर भी मैंने कहा कि लंच टाइम पे मैंने उठाया, पढ़ा और मुझे अच्छा लगा. तो मैंने सोचा कि पूरा पढ़ते हैं और लोगों में बांटते हैं. थैंक यू. एंड आपने बहुत ही अच्छा बोला. लाइक हम सब बहुत थक के आए हैं बिकॉज टाइमिंग भी ऐसा है, बट आपने इतना कामली बोला कि लाइक हम सबको इतना अच्छा लगा, सबकी नींद भी उड़ गई. सो थैंक यू. थैंक यू सो मच. हाँ, क्या बाजू में इट वॉज वंडरफुल. एंड अभी जो हमारी एज है वो एज ऐसी है कि हम अभी आगे जाके प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होंगे. ये जो सब लेसन आपने दिए आज वो हमको बहुत काम आएंगे. और शायद जैसे मैंने कहा हम सबको ये सब पता ही था, बट हमने शायद रियलाइज़ नहीं किया था और हम भूल जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें आज जो हमने सुनी वो अभी हमको माइंड में वो फिट हो गया कि आगे हम अब जब जाएंगे प्रोफेशनल लाइफ में तो ये सब हमें ध्यान रखना है, कैसे कोऑपरेट करना था जैसे आपने समझाया, और कैसे प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जो हमें पता नहीं है क्योंकि हम अभी एंटर नहीं हुए. बट आपका एक्सपीरियंस है, आपने हमें बताया कि ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती है, तो हमें रियलाइज़ हुआ और हमें अभी पता है, अभी हम पहले से ही वो प्रिपेयर हो गए कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, हमें ऐसे रिएक्ट करना है. सो दैट वाज सो हेल्पफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर दीज लेसन्स. मैंने तो इतनी सारी नोट्स ली कि पेन खत्म हो गई मेरी, बट इट वाज सो वंडरफुल. थैंक वाज यू. अमेजिंग. थैंक यू सो मच. શું નામ છે બેન તમારું? રીચા અગ્રવાલ કોલેજ ને? ઓકે ફાઇન. આ બાજુ આરતી બેન.
આમ તો આવી બધી બુક્સ ઘણીવાર વાંચી છે કે સ્ટ્રેસ કેમ ના લેવો, જોબને લગતી. આઈ ગુજરાતી હા હા બધાને સમજાય કમ્ફર્ટેબલ છે એટલે વાંચી છે આવી બધી ડેલ કાર્નેગી ને બધી બુક્સ. પણ શું થાય કે વાંચીએ પછી ભૂલી જવાય. પણ આજે તમે જે વાંચીને ટુ ધ પોઈન્ટ જે સમજાવ્યું છે એવું લાગ્યું કે જ્યારે કોઈ વાત ફ્રેન્ડ આપણને કરતું હોય તો કેવી રીતે આપણે ઉતારી શકીએ ઇઝીલી, એવી રીતે ટુ ધ પોઈન્ટ તમે દરેક વસ્તુ બહુ સરસ રીતે એક્સપ્લેન કરી. એમાંથી હવે કદાચ વાંચીને ના મળે પણ અત્યારે જે તમે કહી કદાચ થોડીક એમાંથી ઉતરી જાય એવું આશા રાખશું. થેન્ક યુ સો મચ. તમે જે કીધું કે પ્રેઝન્ટમાં જ રહેવું જોઈએ, પણ લાઈક મેં હમણાં મારા એન્ડિંગ સ્ટેજ પર છું ગ્રેજ્યુએશનમાં, તો કશે ને કશે ફિલિંગ આવે છે કે ફ્યુચરમાં શું થશે ત્યારે કેવી રીતે ડીલ કરવું? सही बात है, ऐसा होता है. फ्यूचर का टेंशन आपको बार बार आएगा और आपको नहीं आएगा तो आपके पेरेंट्स को आएगा, आपके दोस्तों को आएगा, आपके बिहाफ पे है ना. तो देखो बार बार हम ये रिमाइंड कराए कि यार आज मैं जो कर रही हूँ वो बेहतर कर रही हूँ क्या. एक आप सवाल पूछो कि यार मैं अपनी कैपेसिटी में बेहतर कर रही हूँ क्या. क्योंकि फ्यूचर वही है कि कोई हम उसको नहीं देख सकते है ना. लोगों को बहुत अच्छा लगता है फ्यूचर प्रिडिक्ट करना अपना, मैं कल वहाँ होंगी, कल वहाँ होंगी, वहाँ होंगी, है ना. पर वो फ्यूचर बहुत अनसर्टेन होता है. कोविड किसी को पता था? नहीं पता था. मैंने बहुत फ़ायदे लिए कोविड के, मैं बहुत अच्छे से पास हो गई. पर हमको फ्यूचर नहीं पता होता तो हम आज में बेहतर करें, वही एक लेसन है जो आप लेके जाओ. ठीक है. और खुद को यही, आप खुद के अच्छे दोस्त बनो और खुद को यही समझाओ, है ना. ठीक है. હા પરાસ. पहले तो आज का जो सेशन रहा, मैं एक वर्ड में बताऊंगा आप लोगों को, बहुत ही इंटरेक्टिव था. कभी कभी ऐसा हुआ था यहाँ पे, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि यहाँ के स्पीकर्स नहीं अच्छे, बट एक फॉर्मेट फॉलो कर रहे थे. आपने वो फॉर्मेट को तोड़ा, जो वहाँ पर वर्ड दिखा है वार्तालाप, उसको प्रॉपरली आपने जस्टिफाई किया. ऐसा नहीं आगे नहीं हुआ, आगे नहीं हुआ है. बट मुझे एक वार्तालाप याद आ गया जब दीपक भाई तुमने ख्याल हो तो चिन्मय भाई जैसा है श्रेया कटारी अपने एक वार्तालाप होता, ये दोनों का एक वार्तालाप था और वो मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ पे. मतलब पहली बार मतलब मैं युवा वार्तालाप था, सबसे पहले मैं बाल वार्तालाप में आता था, तो उसकी जैसी वाइब मुझे आ जाए. अच्छा, और दूसरी बात आपने बताया कि थोड़े थोड़े टाइम पे ब्रेक लो, ठीक है, और उससे आपकी प्रोडक्टिविटी एनहेंस हो सकती है. इससे मतलब कुछ मिलती जुलती बात हमें हमारी कंपनी के सीईओ ने बताई है. मैं आपको बता देता हूँ, हमारी कंपनी में 2 बार चाय रहती है, सुबह में 10 साढ़े 10 बजे और शाम को या दोपहर को 3 साढ़े 3 बजे. तो हमारे सर ने एक बात बताई, पता नहीं शायद मुझे एड्रेस करके बोली होगी, और उन्होंने बोला कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको चाय पीने के बाद काम करने का मन करता है. सर ने बोला हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर कोई काम ऐसा है कि जिसमें आपका दिमाग ज़्यादा लग रहा है और आपका दिमाग चाय पीने के बाद ही काम कर रहा है, तो आप चाय पीने के बाद वो काम करो. जिस काम में दिमाग नहीं लग रहा उसको चाय पीने से पहले खत्म कर लो. सही बात है. बस इतना ही बोलूँ. बहुत बढ़िया. थैंक यू फॉर शेयरिंग. હું ગુજરાતીમાં જ બોલીશ, 2 ભાગમાં છે. સારું હતું અને જે સ્ટાર્ટિંગ જે થયેલું જે ક્વેશ્ચન આન્સરવાળું એ તો વાત જ અલગ હતી અને બહુ સારું સ્ટાર્ટિંગ હતું. અને જે મુદ્દાઓ આપણે જે કવર કર્યા ને એ કોમ્પિટેટિવ પ્રોફેશનલ લાઈફમાં છે ને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે બધા મુદ્દાઓની. એમાં જો તમે કોમ્પિટેટિવ વાતાવરણમાં હોય, કોઈ કોર્પોરેટ્સમાં હોય અને જ્યાં તમારી જોબની જ ખતરો હોય અને એવા વાતાવરણમાં તમે જો કામ કરતા હોય તો એની માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ મુદ્દાઓ હતા. અને ખરેખર એક વસ્તુ તો મારે હવે કાલથી જ ફોલોઅપ કરવાનું રહે કે મારું ડેસ્ક મારે કાલથી સારું કરવાનું એટલું તો પાછું, કેમ કે આખો દિવસ કામ કરીને સાંજે તો જોઈએ તો રિઝલ્ટ તો કંઈ હોય જ નહીં. એટલે હવે એ મુદ્દા જોવા છે. બીજો ભાગ મારે એ કહેવાનો હતો કે આજે આપણે જે દિવસ મોરારજી દેસાઈને યાદ રાખીએ તો આપણે એવું કહી શકીએ કે ભાઈ એ ગુજરાતી જ કરી શકે કે ભાઈ જેમ નરેન્દ્રભાઈ મોદી આવી અને 2016માં 500 ને 1000ની નોટ બંધ કરી દીધી, બરાબર છે,
એ પ્રેરણા આપણે એમ કહી શકીએ કે ભાઈ એને મોરારજી દેસાઈ પાસેથી લીધી હોઈ શકે. આમાં લગભગ કોઈને ખબર બી નહીં હોય કે એ નોટબંધી મોરારજી દેસાઈ 1976ની આસપાસ કરી હતી અને 10,000ની નોટ જ બંધ કરી દીધેલી એમ. એટલે આપણે એનો ગર્વ લેવો કે આવો ડિસિઝન જે દેશ માટે છે એ કોઈ ગુજરાતી જ લઈ શકે એમ. પાછળ કોઈ એક વાત એડ કરવાની રહી ગઈ કે તમારી વર્ક પ્લેસ અથવા તમે જે પણ જગ્યાએ જાઓ છો, ઠીક છે, તમે જરૂરી નથી કે તમે તમારા ઉપરના હોદ્દાના લોકોને જ ગ્રીટ કરો. તમારી નીચે જે તમારી ઓફિસમાં કોઈ પ્યુન છે, ઠીક છે, કોઈ માસી આવે છે તો માસીને પણ તમે લોકોની કહી શકો. આનાથી તમે વધારે હમ્બલ થશો. તમે મતલબ કઈ રીતે કહો, આ વસ્તુ છે ને તો મને મારા એક મિત્ર પાસેથી શીખવા મળી હતી. અમે લોકો કોલેજમાં બધા ફંક્શન્સ થતા હતા ને, તો બધા ટીચર્સ જોડે, પ્રિન્સિપલ જોડે, ઇવન ટ્રસ્ટી જોડે ફોટોશૂટ કરાવે. એ ફ્રેન્ડ હતો મારો, એ સફાઈ કર્મચારી જોડે ફોટોશૂટ કરાવતો હતો. ત્યારથી મતલબ મને થોડુંક શીખવા મળ્યું કે એ લોકો પણ એ રીતે માણસ છે, તો એમને પણ ગ્રીટ કરો તો મને લાગે કે તમે કદાચ વધારે ખુશ થશો. તમે કીધું ને કે આપણાથી આટલા મારો અનુભવ થયો છે. હું જ્યારે સ્કૂલે સવારે 9:15 પહોંચું ને, જ્યાં જોબ કરું છું ત્યાં, તો જે કામવાળા માસી જે કચરોવાળા આવે છે ને એ ઓફિસ પાસે જ પહોંચ્યો 9:15. હું પહોંચું ને એટલે હું રોજ એને જય શ્રી કૃષ્ણ કહું. તો હું બોલવાની કહે છે કે પહેલાં મને જય શ્રી કૃષ્ણ. એટલે મારી જાતે એક લગાવ એક પ્રકારનો થઈ ગયો અને એ પ્રકારનું તમે કહો છો પહેલાં માન આપવું પડે તો આપણને માન મળે છે. તમારું હૃદય ખુલ્લું હતું અને તમારું વક્તવ્ય ખૂબ સરસ હતું. તમારો અવાજ પણ એટલો સરસ સાંભળવાની મજા આવી અને પ્રશ્નો તો જેમ મનમાં આવતા ગયા એનું સોલ્યુશન પણ મળતું ગયું, જવાબ પણ મળતું ગયું. थैंक यू. तो मैं बस एक लास्ट चीज़ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग भी काम करते हैं, आप लोगों के भी नेटवर्क है. हम लोग फ्री में ब्यूटिशियन स्किल और कंप्यूटर के कोर्सेज देते हैं, वो भी लुन्सी क्यू में ही, रामनाथन कैफिन की जस्ट बगल वाली जो लाइन है वहाँ पे. तो अगर आपकी किसी नेटवर्क में इनको जानना है, सीखना है, ये सारी चीज़ें निःशुल्क रहती है, तो प्लीज़ उनको आप बताइएगा. और हम अगर उनको रजिस्टर करना है तो हमारा ऑफिस राशि मॉल में है, तो आप लोग भी कभी भी विज़िट कर सकते हो किसी भी कारण से, और वो लोग भी आ सकते हैं जिनको भी वो कोर्स करना है. और जाने से पहले प्लीज़ सिगरेट लेके जाइएगा आप, है ना. ખૂબ સુંદર પ્રશ્નોત્તરી સેશન માટે પણ દરેક શ્રોતા મિત્રોનો આભાર કે આટલા રસપૂર્વક તમે પ્રતિભાવ આપ્યા અને સવાલો પણ પૂછ્યા. હવે ઓફિશિયલી આજના વાર્તાલાપની સમાપન વિધિ માટે અને લાઇબ્રેરીમાં લગતી પ્રવૃત્તિઓ અને આવતા મહિનામાં કોણ આવશે ને કયું પુસ્તક લાવશે એનો જવાબ આપવા માટે હું દીપકભાઈને બોલાવું છું. સૌ પ્રથમ તો આપણે પ્રજ્ઞાબેન માટે જોરદાર તાળી પાડીએ કે ખૂબ સુંદર પુસ્તકને એમણે ખૂબ સારી રીતે અહીંયા રજૂ કર્યું, અને એટલે પ્રજ્ઞાબેનનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. આપ સૌ શ્રોતા મિત્રો કે જે આજે 30થી વધુ શ્રોતાઓ અહીંયા ઉપસ્થિત છે, એમાં કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ પણ છે, વડીલો પણ છે, બધા જ છે, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને એક બે ત્રણ વાત આજના વાર્તાલાપની કે પ્રજ્ઞાબેને શરૂઆત જ આપણને એક્સરસાઇઝથી કરાવી, એટલે યુવા વાર્તાલાપમાં આવું પહેલી વખત થયું છે. જો યુવાનોએ હંમેશા પ્રયોગશીલ રહેવાનું, યુવાનો પ્રયોગશીલ હોય તો જ વિકાસ કરી શકે. તો બહુ સરસ પ્રજ્ઞાબેને બધાને ઊભા કરીને પ્રશ્નો પૂછ્યા અને આખા સેશનને ઇન્ટરેક્ટિવ બનાવ્યો, એક અગત્યની વાત. બીજું કે આજે વાર્તાલાપમાં બહુ સારી પ્રશ્નોત્તરીને પ્રતિભાવ પણ થયા, બરાબર ને માનસીબેન? કે તમે ખૂબ સારી રીતે આખો વાર્તાલાપ સાંભળ્યો અને પ્રશ્નોત્તરી પણ સમય મર્યાદામાં રહીને કરી, એટલે આપ સૌ શ્રોતા મિત્રોનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર.
પ્રજ્ઞાબેનના મમ્મી પણ આવેલા છે, તેઓ પણ ખૂબ સારા વાચક છે. આપકો બી અભિનંદન ઓર થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. હવે અંતમાં છેલ્લી 2 અગત્યની જાહેરાત હું કરીશ અને ત્યાર પછી આપણો કાર્યક્રમ સમાપ્ત થશે. આવતે મહિને પહેલા શનિવારે 1 તારીખ છે, એટલે આજે 1 ફેબ્રુઆરીને બરાબર 1 મહિના પછી 1 માર્ચે સાંજે 6 વાગે આપણો મને ગમતું પુસ્તક યુવા વાર્તાલાપ થશે. એમાં જે વક્તા છે એ પણ અહીં ઉપસ્થિત છે. આપણા જે લાઇબ્રેરીના સહમંત્રી છે નિશાબેન લાખાણી, એમની દીકરી કશિશ, દીકરા ઊભી થઈ જાય જરાક, આ કશિશ લાખાણી છે એ આવતે મહિને અહીંયાથી યુવા વાર્તાલાપ આપવાની છે. પુસ્તક એણે એટલું સરસ પસંદ કર્યું છે. પુસ્તકનું નામ છે માય લાઈફ ઇન ફૂલ. ઇન્દ્રા નોઈ નામ સાંભળ્યું છે? ઇન્દ્રા નોઈ આપે નામ સાંભળ્યું હશે. પેપ્સિકોની ફોર્મર ચેરમેન એન્ડ CEO, એ ભારતની અને ભારતનું ગૌરવ. તો અને બીજું સંયોગ એવો થાય છે કે આવતે મહિને 8મી માર્ચે વિશ્વ મહિલા દિવસ છે, બરાબર? તો 1 માર્ચે આપણે વિશ્વ મહિલા દિવસની ઉજવણી આ રીતે કરીશું કે એક યુવતી ભારતની એક સફળ મહિલાના જીવન વિશે વાતો અહીંથી કરશે. તો હું માનું છું કશિશ આ ઇન્દ્રા નોઈની બાયોગ્રાફી છે, બરાબર ને? આત્મકથા છે ને ઇન્દ્રા નોઈની. તો બહુ સરસ પુસ્તક છે, વક્તા પણ ખૂબ સારી છે. તો બધા એને સાંભળવા માટે આવજો. આ અગત્યની જાહેરાત. બીજી એક ખૂબ જ અગત્યની જાહેરાત કે આપ સૌ જાણો છો કે ગયો રવિવાર 26મી જાન્યુઆરીથી સયાજી લાઇબ્રેરીએ એક નવા પ્રોજેક્ટ લોન્ચ કર્યો છે. આપને માહિતી હશે, સોશિયલ મીડિયા દ્વારા આપે જાણ્યું હશે. એ પ્રોજેક્ટનું નામ છે સયાજી વૈભવ સહવાચન પ્રવૃત્તિ, બરાબર છે? એમાં આપણે શું કરીએ છીએ કે તમે બધાએ પારસી હોસ્પિટલની સામે જે વાજપેયી ગાર્ડન છે, હા, જેને આપણે પારસી ગાર્ડન તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, તો તેમાં દર રવિવારે સવારે 8:30 થી 11 દરમિયાન આપણા જેવા બધા પુસ્તક પ્રેમીઓ ત્યાં એકત્ર થાય છે. પોતાને ગમતું પુસ્તક પોતાના ઘરેથી અથવા લાઇબ્રેરીમાંથી ઇસ્યુ કર્યું હોય તો લઈને આવે છે અને ત્યાં બેસીને વાંચે છે. અને માની લો કે આપણી પાસે પુસ્તક નહીં હોય તો પણ ચિંતા નહીં કરવાની, લાઇબ્રેરી પણ અહીંથી થોડા પુસ્તકો ત્યાં લઈ જાય છે અને ત્યાં તમને વાંચવા માટે આપે છે. હવે ત્યાં શું કરવાનું છે, લાઇબ્રેરીની એક નોટ હોય તેમાં માત્ર આપણું નામ અને મોબાઈલ નંબર લખી દેવાનો, એટલે રજિસ્ટ્રેશન થઈ જાય આપણું. એટલે લાઇબ્રેરીને પણ ખ્યાલ આવે કે ભાઈ આજે કેટલા વાચકો અહીં વાંચવા માટે આ પ્રવૃત્તિમાં આવ્યા, બરાબર? 2-3 જણાએ મને પ્રશ્ન પૂછ્યા, એનું તમને પણ એવો પ્રશ્ન થતો હશે તો એનું પણ હું સમાધાન કરી દઉં કે મને 1-2 જણાએ ગયા રવિવારે પૂછેલું કે ભાઈ 8:30 થી 11 જે 2.5 કલાકનો કાર્યક્રમ છે તો અમારે 8:30 આવી જ જવાનું અને 11 વાગ્યા સુધી બેસવાનું જ, આ ફરજિયાત છે? તો ના, એ ફરજિયાત નથી. 8:30 થી 11 તો એ પ્રવૃત્તિનો સમયગાળો છે. આપણે 2.5 કલાક બેસીને ત્યાં વાંચી શકતા હોય તો બહુ સરસ, પણ જો એટલા સમયની અનુકૂળતા આપણી પાસે ન હોય તો 2 કલાક, 1.5 કલાક, 1 કલાક કે ઓછામાં ઓછો અડધો કલાક તો આપણે ફાળવી શકીએ ને. રવિવારની સવારે સ્કૂલમાં, કોલેજમાં, આપણી જોબ ઉપર, બિઝનેસ પર બધે રજા જ હોય છે રવિવારે, તો આપ અડધો કલાક પણ ત્યાં આવો તો ચાલે. તો ફરી પાછા આવતીકાલે સવારે 8:30 થી 11 દરમિયાન પારસી ગાર્ડનમાં આપ સૌ આવજો. આપના કુટુંબીજનોને પણ લઈ આવજો સાથે, આપના મિત્રોને પણ જાણ કરજો. એમાં થાય એવું કે આપણે સોમથી શનિ આપણું જે ડેઇલી રૂટીન હોય છે, આપણે અભ્યાસ કરતા હોઈએ, આપણે જોબ કરતા હોઈએ, આપણે બિઝનેસ કરતા હોઈએ, હાઉસવાઈફ હોય, સોશિયલ વર્ક કરતા હોય, કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરતા હોઈએ આપણે, તો વાંચવાનો સમય મળતો નથી. આ પ્રવૃત્તિના લીધે એવું થશે કે આપણને એક સારી ટેવ પડશે. આપણે એમ નક્કી જ કરી લેવાનું કે દર રવિવારે સવારે પારસી ગાર્ડનમાં જઈને આ પ્રોજેક્ટની અંદર અડધો કલાક, 1 કલાક, 1.5 કલાક, 2 કલાક જેટલું આપણે વાંચી શકતા હોઈએ તેટલું ત્યાં બેસીને વાંચીશું. ઓકે? તો આવતીકાલે સવારે આપણે ત્યાં વાજપેયી ગાર્ડનમાં મળીએ. અને ત્યાંનું વાતાવરણ એટલું સરસ હોય છે, હું 1 જ મિનિટમાં ગયા રવિવારના અમારા જે અનુભવ અથવા તો એને વધારે સારી રીતે અનુભૂતિ કહી શકાય એની વાત કરું તો ગયા રવિવારે 2 કલાક અમે 9 થી 11 ગાર્ડનમાં બેસીને
37 જેટલા વાચકો હતા. સરસ બધા પુસ્તકો 2 કલાક શાંતિથી બધાએ વાંચ્યું. બધાને ખરેખર ખૂબ આનંદ થયેલો. અને આનાથી એક આપણે પોતે તો વાંચવાની ટેવ પડે, પણ સાથે આપણને નવસારીમાં રહેતા જે બીજા પુસ્તક પ્રેમીઓ છે એમની સાથે આપણો પરિચય થાય. બરાબર ને? બીજું કે ભાઈ કયો વાચક કયું પુસ્તક વાંચે છે એની પણ આપણને જાણ થાય, નવા પુસ્તકોની આપણને જાણ થાય. તો પુસ્તકો વાંચવાના અગણિત ફાયદા છે. અને આપણું તો સયાજી લાઇબ્રેરીનું સૂત્ર છે કે જે પુસ્તકનો મિત્ર તે મારો મિત્ર. બરાબર ને? તો ત્યાં જે પણ વાંચવા આવશે તે બધા આપણા જ મિત્રો હશે. તો ફરી એકવાર આવતા મહિને 1 માર્ચે સાંજે 6 વાગે યુવા વાર્તાલાપમાં કશિશને બહુ સુંદર પુસ્તક ઉપર સાંભળવા માટે આવીશું આવતીકાલે. અને પછી દર રવિવારે આ સહવાચન પ્રવૃત્તિમાં આપણે ભાગ લઈશું. અને છેલ્લે ફેબ્રુઆરીમાં, માર્ચમાં આપણા જે 4 શનિવારના વાર્તાલાપ છે એ સિવાય પણ વિશેષ કાર્યક્રમો છે. તો એની જાણ આપને યોગ્ય સમયે કરવામાં આવશે. આપે બહાર જે નોટ છે તેમાં આપનું નામ ને મોબાઈલ નંબર લખી દીધો હશે. બરાબર ને? તો આપને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા કે ફોન દ્વારા જાણ કરવામાં આવશે. તો આપ સૌ આપણી આ લાઇબ્રેરી સાથે જોડાયેલા રહેજો. ફરી એકવાર પ્રજ્ઞાબેનનો ને આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણી પ્રણાલિકા મુજબ આપણે 6 વાગે કાર્યક્રમ શરૂ કરીએ છીએ અને 7:30 વાગે કાર્યક્રમ પૂરો કરીએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. શુભરાત્રિ. ધન્યવાદ.